लेते हैं। People will be able to access more options for education and healthcare. This will also create employment opportunities in tourism, transport, and hospitality sectors. Friends, for a long time, some political parties in our country practice vote bank politics. Their focus was always on places which had more votes and seats. The entire Northeast, including states like Mizoram, suffered greatly because of this attitude. But our approach is very different. Those who were earlier neglected are at the forefront now. Those who were once marginalized are the mainstream now. For the past 11 years, we have been working for the development of the Northeast. This region is becoming the growth engine of India. Friends, over the years, many states of the Northeast have been put on the rail map of India. For the first time, rural roads and highways, mobile connectivity and internet connections, electricity, tap water, and LPG connections. The government of India has worked hard to strengthen all kinds of connectivity. Mizoram will also benefit from the scheme for air travel. Soon, helicopter service will begin here. This will improve access to remote areas of Mizoram. Friends, Mizoram has a major role in both our Act East policy and the emerging Northeast Economic Corridor. With the Kaladan multi-modal transit transport project and Serang Humang Buchehua rail line, Mizoram will also get connected to the Bay of Bengal through Southeast Asia. Due to this, trade and tourism will be boosted across Northeast India and Southeast Asia. Friends, Mizoram is blessed with talented youth. Our work is to empower them. Our government has already started 11 Eklavya residential schools here. Work is going to start 6 more schools. Our Northeast is also becoming a major hub for startups. I'm happy that around 4,500 startups and 25 incubators are operating in the region. Young people of Mizoram are actively joining this movement and creating new opportunities
for themselves and others. Friends, India is quickly becoming an important hub for global sports. This is also creating a sports economy in the country. Mizoram has a wonderful tradition of sports, producing many champions in football and all other sports. Our sports policies are benefiting Mizoram as well. Under the Khelo India scheme, we are supporting the creation of modern sports infrastructure. Recently, our government has also come out with a national sports policy, Khelo India Khel Niti. This will open new doors of opportunities for the youth of Mizoram. Friends, whether in our country or abroad, it gives me great happiness to play the role of an ambassador of the beautiful culture of the Northeast. Encouraging platforms that showcase the potential of the Northeast is important. A few months ago, I had the opportunity to participate in the Ashtalakshmi festival in Delhi. It showcased the textiles, crafts, GI tag products, and tourism potential of the Northeast. At the Rising Northeast Summit, I encourage investors to tap into the potential of the Northeast. The summit is opening up the path for massive investment and projects. When I talk about being vocal for local, it greatly benefits the artisans and farmers of the Northeast too. Mizoram's bamboo products, organic ginger, turmeric, and bananas are well known. Friends, we are constantly taking steps to boost ease of living and ease of doing business. Recently, next generation GST reforms have been announced. This means lower taxes on many products, making life easier for families. Before 2014, even daily essentials like toothpaste, soap, and oil were taxed at 27%. Today, only 5% GST is applicable. During Congress rule, medicines, test kits, and insurance policies were heavily taxed. That is why healthcare was expensive and insurance was out of reach for ordinary families. But today, all these have become affordable. The new GST rates will also make medicines for serious diseases like cancer more inexpensive. After September 22nd, cement and construction materials will also become cheaper. Many companies that manufacture scooters and cars
have already reduced prices. I am sure that the festive season this time will be even more vibrant across the nation. Friends, as part of the reforms, GST on most hotels had been reduced to only 5%. Traveling to various places, staying in hotels, and eating out will become cheaper. This will help more people travel, explore, and enjoy different parts of our country. Tourist hubs like the Northeast will particularly benefit from it. Friends, our economy has seen a growth of 7.8% in the first quarter of 25-26. It means India is the fastest growing major economy in the world. We are also seeing the growth of Make in India and exports. During Operation Sindoor, you all saw how our soldiers taught a lesson to those who sponsored terror. The whole nation was filled with a sense of pride about our armed forces. In this operation, Made in India weapons played a significant role in protecting our country. The growth of our economy and manufacturing sector is very important for our national security. Friends, our government is committed to the welfare of every citizen, every family, and every region. It is through the empowerment of the people that a developed India will be built. In this journey, I am confident that the people of Mizoram will play a very important role. Once again, I extend my heartfelt congratulations to you all and welcome Aizawl to the railway map of India. Today, due to the weather, I could not come to Aizawl, but I'm sure that we will meet very soon. Thank you. Thanks a lot. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे, मिजोरम में उनकी मौजूदगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बड़ी सौगात मिजोरम वासियों को दी है और आइजोल में रेल कनेक्टिविटी की ये बड़ी सौगात आज दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए सरकार प्रतिबद्ध है और पूरी कोशिश की जा रही है कि नॉर्थ ईस्ट में तमाम वो सुविधाएं लोगों को मिले। जहां जो कमी नॉर्थ ईस्ट में है अभी, उसे भी जल्द से जल्द पूरा किया जाए। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हरी झंडी दिखाई है 3 ट्रेनों को। और सबसे बड़ी बात यह कि आजादी के बाद पहली बार ऐसा मौका है जब आइजोल में रेल कनेक्टिविटी की शुरुआत हुई है, जिससे काफी फायदा सहूलियत लोगों को मिलेगी। और इसी का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपने संबोधन में करते हुए नजर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये बदलाव की लाइफलाइन है और पूरी कोशिश सरकार की ये है कि मिजोरम को विकास की रफ्तार में तेजी से आगे बढ़ाया जाए। और यही वजह है कि आज यहां पर ट्रेनों की शुरुआत हुई है और सीधे सीधे इसका फायदा मिजोरम वासियों को होगा। यानी कि अगर मिजोरम का विकास होगा तो भारत का विकास होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में ये बातें कही है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मिजोरम में मौजूद और बड़ी सौगात, ऐतिहासिक सौगात, मिजोरम में रेल लाइन का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया। और उन्होंने कहा कि यह बदलाव की लाइफ लाइन है और इससे विकास की बयार मिजोरम में बहेगी। मिजोरम सीधा दिल्ली से जुड़ेगा और इससे मिजोरम वासियों को भी काफी
फायदा मिलने वाला है। रोजगार की संभावनाएं भी बढ़ेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका भी जिक्र किया। कुल मिलाकर रेल कनेक्टिविटी मिलने के बाद मिजोरम की एक नई शुरुआत कह सकते हैं, क्योंकि यहां पर विकास की जो नई शुरुआत है वो अब देखने को मिलेगी। और आपको बता दें कि बेराबी सेरांग नई रेलवे लाइन परियोजना से लोग काफी खुश नजर आ रहे हैं और हमारे संवाददाता ने वहां के लोगों से बातचीत की है। आपको सुनवाते हैं उनका क्या कहना है। अभी हम मौजूद हैं नॉर्थ ईस्ट सिस्टर के एक राज्य मिजोरम, जो अब तक रेल से महरूम था और रेल सेवाएं शुरू हो रही है। 3 ट्रेनें प्रधानमंत्री हरी झंडी दिखा करके इन लोगों को सौगात दे रहे हैं। तो ऐसे में यहाँ के लोग क्या सोचते हैं, किस तरह से लोगों को फायदा होने वाला है, सीधे यहाँ के लोगों से बात करते हैं। व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज लिंकन। ललिन, हिंदी आती है आपको? थोड़ा आता है। थोड़ी थोड़ी। आपको पता है प्रधानमंत्री आप लोग को गिफ्ट देने जा रहे हैं? अब मोदी हाँ। पता नहीं। हम लोग इसीलिए आपको बताने के लिए आए हुए हैं कि 3 ट्रेनें यहाँ से शुरू हो रही है। इससे क्या फायदा होगा आपको? हम अच्छे से दिल्ली जा सकते हैं ना, इससे फायदा है इससे। और क्या फायदा होगा? एक थोड़ा एप्पल है ना, तो उसका पैसा थोड़ा कम होगा ना, ऐसे फायदा है। तो इस तरह से जो झुग्गियों में रह रहे हो, सीमेंट ये सब लाने में आसानी हो जाएगी, वो सस्ता होगा तो मकान भी बना लोगे। हाँ अच्छा, बना लेगा हैं? बना लेगा। यहाँ पर आप पढ़ाई करते हो? थोड़ा पढ़ता है और दुकान भी चलाते हो। चलिए हम और लोगों से बात करते हैं। यू नो हिंदी और इंग्लिश? इंग्लिश पढ़ते हम लोग, हिंदी का थोड़ा थोड़ा। तो क्या फायदा होगा आप लोग को? इंग्लिश से इतना देखिए, लोगों के चेहरे पे खुशियां हैं, लेकिन ये लिटिल बिट थोड़ी थोड़ी हिंदी आती है। हम और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम आपका? अभी नहीं सर, मैं खाना खा रहा हूँ ना। अरे वाह, खाना खा रहे हैं। ये खाना भी हमको लगता है कहीं बाहर से रॉ मटेरियल आता होगा और काफ़ी महंगा पड़ता होगा। हाँ, महंगा तो पड़ता ही है। हाँ, बाय रोड आ जाते हैं ना, ये सब माल जो है बाय रोड आते हैं और महंगा पड़ता है। और ये जो रास्ता जो है हमारा नेशनल हाईवे जो है बहुत ख़राब है। हर साल ये बारिश के मौसम में हमारा ट्रक वक्त पूरा फंसे रहते हैं रास्ते में, तो बहुत दिक्कत हो जाता है यहाँ पे। तो अगर ट्रेन आएगी यहाँ पे तो सब कुछ का आसानी हो जाएगा, सुविधाएं मिलेंगे। वही अभी मैं बता सकता हूँ। अभी कितना वक्त लग जाता है अगर आसाम से सिलचर होते हुए यहाँ आते हैं तो? अभी तो बाय रोड लग जाएगा करीब 8-9 घंटे, क्योंकि रास्ता बहुत ख़राब है। रास्ते में फंसे हुए होके हम जाते हैं तो टाइम लगता है बहुत। और ट्रेन अब शुरू हो रही है तो हम आसानी से पहुँच जाएंगे। करीब क्या 4-5 घंटे में पहुँच जाएंगे आसाम आसानी से। क्या कहेंगे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी? कहेंगे थैंक यू फॉर कनेक्टिंग मिजोरम टू द रेस्ट ऑफ इंडिया टू रेलवेज। थैंक यू सो मच। तो आप सुन रहे थे, मिजोरम वासी हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दे रहे हैं और कह रहे हैं कि अब मिजोरम भी पूरे देश से रेलवे के जरिए जुड़ चुका है। मनोहर केसरी, आइजोल, मिजोरम। तो रेल नेटवर्क से मिजोरम जुड़ चुका है और लोगों के लिए खुशी इसलिए भी है क्योंकि आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है जब रेल कनेक्टिविटी की सुविधा मिजोरम में मिलेगी, आइजोल को मिलेगी। आइजोल से देखिए 3 ट्रेनों की शुरुआत हुई है जो सीधे सीधे देश की राजधानी दिल्ली से जुड़ेगी और यही वजह है कि लोगों का साफ तौर पर कहना है, लोगों को आपने सुना कि जब इसकी शुरुआत आज हुई है तो लोगों को किस कदर इसका फायदा मिलने वाला है। और इसके साथ ही आपको यह भी बता दें कि मिजोरम के लोग पहली बार अब रेल की सीटी जो है वो सुन पाएंगे, क्योंकि इससे पहले वहां पर लोग जो है आवाजाही सड़कों के माध्यम से ही कर पाते थे, यानी कि रेल कनेक्टिविटी वहां पर नहीं थी। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ये बड़ी पहल की गई और बहुप्रतीक्षित ये प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रहा और कोशिश ये की गई कि सुदूरवर्ती इलाके में रेल कनेक्टिविटी पहुंचे और वो लगातार अलग अलग देश के हिस्सों में देखने को भी मिल रहा है। और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार कई मंच से ये कह चुके हैं कि देश का विकास तभी होगा जब सुदूरवर्ती इलाके में आवाजाही की जो सुविधा है वो दुरुस्त होगी, यानी कि रेल कनेक्टिविटी मजबूत होगी। और यही वजह है कि जिन जिन राज्यों में रेल कनेक्टिविटी नहीं थी वहां पर भी
अब उसे मजबूत किया जा रहा है, वहां तक रेल कनेक्टिविटी को पहुंचाया जा रहा है। और इसकी सीधी सीधी जो वानगी है वो हमें आज मिजोरम में भी देखने को मिली है। मिजोरम में रेल कनेक्टिविटी की शुरुआत और यहां से 3 ट्रेनों को आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाई और इसके साथ ही एक बड़ी सौगात मिजोरम वासियों को मिली है। मिजोरम के लोग काफी खुश हैं, उत्साहित हैं। उनका ये कहना है कि आने जाने में जो हमें काफी परेशानी होती थी, अब उससे कहीं ना कहीं राहत मिलेगी और भारी किराया जो हमें देना पड़ता था उससे भी कहीं ना कहीं राहत मिलेगी। मनोहर केसरी हमारे संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। मनोहर, देखिए, एक बड़ी सौगात और ऐतिहासिक सौगात इसे कहा जाए मिजोरम वासियों के लिए, क्योंकि रेल कनेक्टिविटी वहां पर नहीं थी और आज उसकी सौगात प्रधानमंत्री ने दे दी है। तो बिल्कुल आपने सही कहा कि आज मिजोरम वासियों के लिए एक ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि आजादी के 78 साल बाद यहाँ के लोगों से हमारी लगातार बात हो रही है। ये कह रहे हैं कि हमने पहली बार ट्रेन देखा है, हालांकि जो ट्रायल रन पे कुछ लोग गए थे उनका कहना था कि हमने दूसरी बार देखा है, लेकिन सिर्फ यहाँ के एरिया का विकास ही नहीं होगा बल्कि इसका सामरिक दृष्टि से महत्व है। जैसा कि हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मिजोरम वासियों को ये सौगात की है। 3 रेलगाड़ियां जो है सो चलाई गई है। एक रेलगाड़ियां सायरंग रेलवे स्टेशन से, जहाँ से मैं अभी बात कर रहा हूँ, सायरंग रेलवे स्टेशन से मेरे आंखों के सामने वो गाड़ी जो है तो दिल्ली आनंद विहार के लिए रवाना हो चुकी है। वहीं एक ट्रेन वैदी से कोलकाता के लिए रवाना हो चुकी है और एक ट्रेन जो है तो वैदी से गुवाहाटी के लिए रवाना हो चुकी है। और ये जो नई रेल लाइन है, ये देश की सबसे सुरक्षित रेल लाइन है। सायरंग रेलवे स्टेशन से वैली रेलवे स्टेशन पर जो हमारे युवक लगातार देख रहे हैं, दर्शक लगातार देख रहे हैं, उनको मैं मिजोरम से बता रहा हूँ। आइजोल जो मिजोरम की राजधानी है वो देश के बाकी हिस्सों से रेलवे के जरिए जुड़ चुका है। ये नया जो रेलवे ट्रैक है ये 51.38 किलोमीटर का है और सबसे सुरक्षित यह है, इसमें 45 सुरंगें बनी हुई है, सुरंगों का जाल है, पहाड़ों के बीच जो है चिरता हुआ जो है ये टनल बनाया गया है और 55 बड़े पुल हैं, गर्डर ब्रिजेज हैं। एक ब्रिज जो ब्रिज नंबर 144 है वो देश का दूसरा सबसे ऊंचा ब्रिज है, वो भी फायर ब्रिज है और कुतुब मीनार से ये पुल जो है वो 42 मीटर ऊंचा है। और ये इलाका पूरा जो है भूकंप के सिस्मिक जोन 5 के तहत आते हैं और भूकंप सिस्मिक जोन 5 में के दौरान जो भी रिएक्टर मैक्सिमम होगा उसको भी ये पुल और सुरंगें जो और मनोहर, देखिए, हैरानी इस बात से भी होती है कि आज़ादी के इतने सालों बाद भी कई ऐसी जगह है जहां पर रेल कनेक्टिविटी नहीं पहुंच पाई है और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद कहा कि हमारा फोकस है कि वहां तक रेल कनेक्टिविटी पहुंचाए जहां पर नहीं है। और ऐसे में नॉर्थ ईस्ट पर उनका पूरा जोर रहा कि कैसे सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि नॉर्थ ईस्ट में जो है विकास की बयार बहे। लेकिन जब इसकी शुरुआत आज हो गई है तो कैसे लोग इसका फायदा उठा पाएंगे? यानी कि जब रेल कनेक्टिविटी वहां पर नहीं थी तो क्या क्या परेशानी वहां के लोगों को हुआ करती थी? बिल्कुल, यही सवाल जो आपने मुझसे पूछा है, मैं यहाँ के लोगों से, मिजोरम वासियों से मैंने पूछा और जो यहाँ सैलानी आते थे उनसे मैंने पूछा। उनका यही कहना था जिंदगी बहुत ज्यादा मुश्किल थी, यहाँ से बाहर नहीं जा पाते थे, लेकिन अब हम देश के अलग अलग कोनों में जा सकेंगे। सिंपल अगर हम उदाहरण बताएं तो यहाँ जो सामान आता है, चाहे कंस्ट्रक्शन का जो भी सामान हो, लोहे की बात करें, सीमेंट की बात करें, सीमेंट की बोरियां जो है ना 500 से 600 रुपये पर बोरियां पड़ती है और आप समझ सकते हैं दूसरे राज्यों में 300 से 400 पड़ती है। तो कितना महंगा ट्रांसपोर्टेशन यहाँ होता था। और जो आम लोगों की जिंदगी है, आम लोगों के खाने पीने की जो सामान है वो गुवाहाटी से या बर्मा बॉर्डर से आता है। तो गुवाहाटी से मिजोरम की राजधानी आइजोल आने में करीब जो है तो 15 से 20 घंटे लग जाते हैं, लेकिन बरसात के मौसम में 2 से 3 दिन लगता है, क्योंकि सड़कें जो है तो वो सही नहीं होती और कई जगह लैंडस्लाइड
लैंडस्लाइड हो जाता है, सड़कें ब्लॉक हो जाती है, हाईवे बंद हो जाता है, जिसकी वजह से लोगों की जिंदगी बहुत ज्यादा कठिन होती है, सफर बहुत मुश्किल हो जाता है। और अगर हम सायरन से बैरवी रेलवे स्टेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ से जब सड़क रास्ते लोग आते हैं, एक मिजोरम के कपल से हमारी बात हुई, उनका ये कहना था कि हम 4 से 5 घंटे लग जाते हैं सड़क रास्ते से, और अब महज सायरन से बैरवी करीब 1 घंटे में पहुंच जाएंगे। और जहाँ तक पैसे का सवाल है तो करीब 500 रुपये उन्हें खर्च करने पड़ते थे, लेकिन अब करीब 25 रुपये से 50 रुपये में वो सफर कर सकेंगे। तो आप समझ सकती हैं कि ये इको फ्रेंडली है, ये जो है सो पॉकेट फ्रेंडली है, और ये यहाँ के लिए यहाँ की इकोनॉमी फ्रेंडली है, क्योंकि यहाँ के इकोनॉमी में 4 चांद लग जाएगा। यहाँ के जो एग्री प्रोडक्ट है, कहा जाता है मिजोरम जो है प्रकृति के गोद में बसा हुआ है, पहाड़ों से घिरा हुआ है, यहाँ का सौंदर्य काफी ज्यादा निराला है, यहाँ की छटा देखते ही बनती है। जिस रेलवे स्टेशन में चले जाएंगे, चाहे मुखलांग चले जाए या फिर सायरन चले जाए या फिर हरतकी चले जाए, बैरवी चले जाए, हर जगह आपको वो तस्वीर दिखेगी कि एक पल के लिए आपको लगेगा कि यहाँ रुक करके हम अपनी फोटोग्राफी कर लें। तो ऐसे में ये इलाका जो है सो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए जाना जाता है। यहाँ पर ड्रैगन फ्रूट्स हो गया, एवोकाडो हो गया, या बांस की हम बात करें, या तमाम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट अब यहाँ से देश के दूसरे राज्यों में जाएगा। मिजोरम वासियों को एक बड़ा मार्केट मिलेगा, वो अपने सामानों को बेच सकेंगे। तो ये सबसे बड़ी सौगात बड़े पैमाने पर देखिए रोजगार के जो अवसर हैं वो भी वहां पर पैदा होंगे। लेकिन जरा ये भी बताइए मनोहर, क्योंकि बैराबी सैरांग रेल लाइन पूर्वोत्तर के सबसे दुर्गम इलाके से होकर इसे तैयार किया गया है, यानी कि ये बनाई गई है, ऐसे में इसकी खासियत क्या है और इस रेल कनेक्टिविटी को बनाने में आखिर कितना समय लगा? देखिए, बिल्कुल ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपना पहला कार्यकाल था। 2014 की मैं बात करूं तो 2014 में जब प्रधानमंत्री ने शपथ ली, उसके कुछ ही महीनों के बाद नवंबर 2014 में इसकी स्टोन रखा गया था, शिलान्यास किया गया था, और करीब 11 साल में ये बन करके तैयार हो चुका है। 51 किलोमीटर दूरी की ये नई रेल लाइन है। अगर हम खासियत की बात करें तो इसका सफर काफी रोमांचक रहने वाला है, और रोमांचक से भी सबसे ज्यादा ये कहें तो यहाँ के लिए जरूरत थी, यहाँ की जिंदगी को आसान करने के लिए, यहाँ के लोगों को एक वैसी सुविधाएं देने के लिए जो 78 सालों से लोग महरूम थे कि हम कभी जा सकेंगे, हम कहीं समा सकेंगे, ये स्थिति थी। क्योंकि सबकी बस ऐसी होती नहीं कि वो फ्लाइट से दिल्ली जा सके। अगर फ्लाइट से जाना भी चाहते हैं तो वो उतने सामान को कैरी नहीं कर सकते हैं, रेस्ट्रिक्शन है, 15 kg से ज्यादा नहीं ले जा सकते, ये तमाम इशू हैं। और अब जब ट्रेन से जाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा सामान कैरी कर सकते हैं। आज पैसेंजर ट्रेन चली है, और 14 सितंबर यानी अब से करीब 24 घंटे के बाद मालगाड़ी की भी शुरुआत हो रही है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसका ऐलान कर दिया है, तो आप समझ सकते हैं। और जहां तक मैंने रोमांच की बात की तो सैलानियों की संख्या बढ़ेगी, टूरिस्ट में बुस्टअप होगा। यहाँ पर एक स्काई वॉक है जहाँ से पूरा आइजोल खूबसूरत दिखता है। जैसा हम चीन में स्काई वॉक देखते हैं, शीशे का ब्रिज देखते हैं, उसी तरह यहाँ एक शीशे का ब्रिज है जिसपे चढ़ करके आप आनंद उठा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर सुरंगों का जाल है, ब्रिजों का जाल है, झरने हैं, जंगल हैं। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ आने वाले लोगों को की क्या स्थिति होगी, किस तरह से लोग जो है बदलाव की बयार बहेगी, और इसका भी जिक्र प्रधानमंत्री हैं। करते हुए नजर आए थे। ठीक है, बहुत शुक्रिया मनोहर केसरी तमाम जानकारी के लिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी